Bonjour Kanika, comment ça va? Ça va bien. Je vais bien aussi, merci. Alors, oui, I can see Shivani as well. Bonjour Shivani, you'll unmute yourself once. Tu vas activer ton micro. Comment ça va? बहुत bien. Bonjour, comment ça va Shivani? Ça va bien. Et vous? Je vais bien aussi, merci. Alors, on commence le niveau A2? Oui? Oui. On commence? Oui, madame. बहुत bien. D'accord, madame, monsieur. Okay, on va continuer. So, as you can see, we will start our A2 classes now, and you have already done your A1. So, please repeat and revise everything that you have seen in that level. Today, we'll move ahead with a new topic on the level A2. I can see one more candidate, just a second. So, we'll just carry on. And the topic that we are going to see at A2 level is going to be the past tense today, right? We'll work on past tense. So I can see Navya. Bonjour Navya, comment ça va? Ça va? Yes. Super, super. C'est un plaisir, it's a pleasure de te revoir, to see you again after a long time. Tout va bien? Oui? D'accord. Okay, so Navya, we are starting our A2 classes from today onwards. The first topic that we are going to see is past tense, right? So Kanika, Shivani, Navya, all be ready. We have to put all our energies together and we have to move ahead with this A2 level wherein we'll cover this course in a span of 50 hours. We will do the listening, reading, writing and speaking part, right? Ça va? C'est clair? Okay. I will be sending you the recording of this session. So anytime whenever you miss it, you can watch it. I will also be sending you the PDF of this, everything that is done on the screen. So you will have it on you. But you still write your notes, make your notes. But if at all you are missing out on something, you can always get this PDF after the class in WhatsApp. Ça va? Okay. Chali, so with that, we'll quickly start and we'll get going. So today we are going to start with something called le passé composé. All right. Le passé composé. Now, what does passé composé stand for? Because in your A1 level, you have seen present tense. Je mange, je ne mange pas, je regarde, je ne regarde pas. Tu parles français? Oui, je parle français. Tu parles français? Non, je ne parle pas français. Shivani, what does that mean? Non, je ne parle pas espagnol. Shivani, je ne parle pas espagnol. Oh, you'll have to unmute yourself. Tu vas activer ton micro. I don't speak Spanish. Yeah, I don't speak Spanish. Je ne parle pas espagnol. Isn't it? Yes. So you know present tense. Everyone knows it very well. We also saw something called near future. You remember everyone? Near future. Je vais manger. Nous allons travailler. Right? So if I were to ask you a question, Kanika, tu vas regarder la télé ce soir? Tu vas regarder la télé aujourd'hui, ce soir? You just regard you just watch the television. Okay, I'll let me do one thing. Let me quickly insert one more this thing and then we'll start with that. So, okay. All right. So, this is called tu vas regarder la télé ce soir. Yeah. You are going to watch television This evening, right? in this. Yeah. Is that so, Navya? Tu vas regarder la télé ce soir? That's what the meaning is? Yes. Right? Yes. And what if you were to respond, Navya, by saying, no, I'm not going to watch TV this evening? Navya? Je ne vais pas, not je ne veux pas, je ne vais pas regarder la télé ce soir. Regarder la télé ce soir.
Shivani, ça va? Is it future proche? Yeah, very good. It is futur proche. Le futur proche. Absolutely. Ça va, Shivani? You remember futur proche? हमने सीखा था near future. Yes, yes. ये किसकी सहायता से बनता है कनिका? आले की सहायता से। इसमें क्या बोलते हैं हम? je बोलते रहिए अनम्यूट करके। je vais आगे। Je vais, tu vas, tu vas, elle va, il va, elle va, nous allons, vous allez, il va, elle va. राइट। चलिए, याद है आपको शिवानी? नव्या? je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Right? That's what near future is. इसमें हम आले टू गो वर्ब को काम में लेते हैं और उसके बाद पूरा वर्ब लगाते हैं। राइट? सो आप कैसे बोलेंगे शिवानी? आई एम गोइंग टू सिंग, मैं गाने वाली हूं, मैं गाने जा रही हूँ। Je vais chanter. Very good, je vais chanter. Navya, I'm going to eat. No, not I'm going to eat, sorry. You are going to eat. Tu vas manger. Very good. And the same thing, Navya, if you were to ask us a question, आप कैसे पूछोगे टोन लेके? Tu vas manger. Yeah, take more correct tone. Tu vas manger? Tu vas manger? Right? Tu vas manger. That's correct. Okay, Kanika, he is going to dance. He's going to dance. Il va danser. Il va danser. Very good. Il va danser. Perfect. Shivani, we are going to watch a French film. हम एक French film देखने जा रहे हैं. बताइए शिवानी. अनम्यूट करके बोलिए आप. Nous allons Nous allons. regarder la français. इसको अच्छे से बोलिए. Film français. इसको अच्छे से बोलिए. Regarde. पूरा बोलिए शिवानी. Regarder. Regarder. और क्या देखने वाले हैं? Un film. Film français. Very good. एक बात ध्यान रखिएगा, everyone, nationality always comes in the end. Nationality हमेशा पीछे जाती है, right? A French film becomes a film French. Okay, over to you, Navya. How would you say? You are going to understand my problem. You're going to understand my problem. What do we call to understand? Anyone? Shivani, Kanika? Comprendre. Okay, comprendre. Vous allez comprendre. Comprendre. And what is my? If I told you problem is masculine, so mon. Mon problème. Mon problème. Perfect. Ça va? Right? Okay. You people chose a color code today. I don't know if you can see each other. Can you see each other? Yeah, I thought so. Maybe you people had some planning today for the day. I was feeling the odd one out. I thought, no, but I thought I'm the teacher, so let me be odd one out. Okay, so vous allez comprendre mon problème. You are going to understand my problem. And the last one, that's for whom? That's for Kanika. They are going to visit Paris. They're going to visit Paris. Ils vont visiter Paris. शहर के पहले हम सिर्फ आ preposition लगाते हैं जब to और at की बात होती है, अदरवाइज कोई preposition नहीं आएगा, राइट? सो Paris. Ils vont visiter Paris. चलिए, क्लियर है यहाँ तक सभी को? नियर फ्यूचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे A1 पे हमें बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, बट अभी भी नहीं आया तो A2 पे तो बिल्कुल पुख्ता स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए. जो भी आपका पर्पस है, आपको कंपनी में काम करना है, vous voulez travailler dans une entreprise. Shivani, tu veux être un professeur de français, ou bien pour toi, Navya, pour tes études en France, c'est important de bien parler, de parler correctement. ठीक है? De parler correctement. What is correctement? Correctement. क्या मतलब है इसका कहने का? Parler correctement. Correctly. You have to speak correctly, right? It's important for all of us to speak correctly. चलिए, फटाफट से इसका नेगेटिव कर लेते हैं. नेगेटिव बताइए. We'll start with Shivani.
आई एम नॉट गोइंग टू सिंग, मैं नहीं गाने वाली हूँ, मैं नहीं गाने जा रही हूँ. Je ne vais pas chanter. Perfect. Next, Navya. Tu ne vas pas manger. Voila. Kanika, he's not going to dance. Il ne va pas danser. Il ne va pas danser. Perfect. Shivani, we are not going to watch a French film. Or you'll have to unmute, unmute, unmute. Yeah. Nous n'allons pas regarder un film français. Voilà, nous n'allons pas regarder un film français या nous n'allons pas regarder deux films français. दोनों चल जाएंगे, दो ठीक है वैसे. Okay. Next one for you, Navya. Vous n'allez pas comprendre mon problème. Very good. Vous n'allez pas comprendre mon problème. You will not understand my problem. You are not going to understand my problem. How hard I try you, it's different. Perhaps you don't have that level, so you want to tell someone, vous n'allez pas comprendre mon problème. And the last one for you, Kanika, they are going to visit Paris. They are not going to visit Paris. Ils ne vont pas visiter Paris. Voilà. Ils ne vont pas visiter Paris. Ils ne vont pas visiter Paris. They aren't going to visit Paris. C'est clair? Ça va? Oui? Très bien. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, एक और टॉपिक फटाफट से मैं आपको समझाता हूँ. There was something प्रेजेंट टेंस आपको अगर याद नहीं है तो मैं फटाफट से रिवाइज करवाता हूँ. तीन तरह के होते हैं हमारे पास verbs. ध्यान रखिएगा everyone. So we have le présent is a tense. Le présent. और कौन कौन से verbs होते हैं? ER ending, IR ending और RE ending. राइट? इसमें हम एक ले लेते हैं वर्ब पार्ले, इसमें हम वर्ब ले लेते हैं फिनीर और इसमें हम वर्ब ले लेते हैं आपके लिए वॉन्ड्रे. राइट? हमने क्या सीखा था इसके अंदर नव्या? ER को हटा के हमें E, ES, E, ONS, EZ और ENT लगाना पड़ता है. याद है आपको शिवानी, कनिका? राइट? Je parle, P-A-R-L. Tu parles, P-A-R-L-I-S. Il, elle, on parle, P-A-R-L. nous में हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, या nous, parlons, वेरी गुड. और वो के साथ P-A-R-L-E-Z और अंत में इल एल के साथ. बताइए शिवानी क्या पढ़ते हैं P-A-R-L-E-N-T को? पार्ल. वेरी गुड, पार्ल पढ़ते. राइट? सो इसका प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए आप लोग और इस रिकॉर्डेड वीडियो को फिर से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. पे रुकना है हमारे को. राइट? इसी बेसिस पे इसी साउंड को मेंटेन करते हुए शिवानी, कनिका एंड नव्या एक एक वर्ब मैं आप तीनों को दे रहा हूँ, सिर्फ बोल के बताइए, लिखना नहीं है आपको. तो शिवानी आपके लिए वर्ब है regarder और कनिका आपके लिए वर्ब है visiter और नव्या आपके लिए वर्ब है voyager. सिर्फ बोल के बता दीजिए. विल स्टार्ट विद शिवानी. शिवानी बताइए regarder का ऐसे बोलिए प्रेजेंट टेंस में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोलना है आपको. Je regarde, tu regardes, il, elle regarde, nous regardons, nous regardez, il, elle regarde. वेरी गुड. अब नेगेटिव करिए शिवानी. Je ne regarde pas, tu ne regardes pas, il, elle ne regarde pas, nous ne regardons pas, nous ne regardez pas, il, elle ne regarde pas. ब्रावो, très bien. अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है शिवानी, आप टीवी देखते हैं? आप टीवी देखते हैं? वो वो के साथ आपने क्या बोला था? वो के साथ क्या साउंड दिया था regarder वर्ब का? Nous regardons हाँ. आगे la télé, तो पूरा क्या क्वेश्चन बनेगा? la télé. तो टोन के साथ पूछिए, क्वेश्चन टोन के साथ शिवानी. Vous regardez la télé. वेरी गुड. वो regardez la télé. तो उन श्रीमान ने आपको उत्तर दिया शिवानी, नो आई डोंट वॉच टीवी. तो क्या बोलेंगे वो? Non, je ne regarde pas Je ne regarde pas la télé. la télé. ठीक है, चलिए परफेक्ट. ओके, ओवर टू यू कनिका. विजिटर का बताइए. Visiter, on fait visiter, tout visiter.
ट्यू के साथ Je visite. ट्यू Nous visite. ट्यू विजिट वही है, साउंड तो है ना, VISITES। आगे Je visite. Elle, on visite. हम्म Nous visitons. Vous visitez. Elle visite. परफेक्ट। और नेगेटिव बोलिए। Je ne visite pas. Tu ne visites pas. Elle ne visite pas. On ne visite pas. Nous visitons. Nous ne visitons pas. Vous ne visitez pas. Elle ne visite pas. Elle ne visite pas. परफेक्ट। ओके, आई एम विजिटिंग पेरिस। मैं पेरिस विजिट कर रही हूँ, मतलब करने वाली हूँ। मैं पेरिस विजिट कर रही हूँ। बोलिए। Je visite Paris. Voilà, je visite Paris। je visite Paris। ओके, आपने अपनी फ्रेंड को पूछा, तुम ताजमहल नहीं विजिट कर रही हो? यू आर नॉट विजिटिंग ताजमहल। Tu ne visites pas Tajmahal. Voilà, tu ne visites pas ताजमहल। tu ne visites pas ताजमहल। परफेक्ट। ओके, नव्या, आपको वोयाज का सुनाना है पूरा हमारे को, प्रेजेंट टेंस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Je voyage, tu voyages, elle en voyage, nous voyageons, vous voyagez, elle voyage. वोयाज इलेलो है, वेरी गुड। और नेगेटिव बताइए। Je ne voyage pas, tu ne voyages pas, il ne voyage pas, nous ne voyageons pas, nous ne vous sorry nous ne voyageons pas. nous ne voyageons pas। वेरी गुड। आगे। Nous ne voyageons pas, हम्म, il ne voyage. आपने कहा nous ne voyageons pas, उसके बाद नीचे वाला क्या होगा? vous Vous ne voyagez pas. voilà, vous ne voyagez pas। और लास्ट में Il ne voyage pas. और elle ne voyage pas। ठीक है, il ne voyage pas, elle ne voyage pas। परफेक्ट। ऑलराइट, आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है। डू यू ट्रैवल टू फ्रांस? यू ट्रैवल टू फ्रांस, यू आर ट्रैवलिंग टू फ्रांस, सारों का एक ही सेंस होगा फ्रेंच में। कैसे पूछेंगे? Tu voyages à Paris? ओके, चेंज या Sorry. नहीं, दैट्स करेक्ट। यू voyage à Paris or en France. It can be en France, right? Tu voyages en France? Are you visiting, are you traveling to France? Tu voyages en France? Perfect. All right, that's correct. Okay, let's move ahead. One interesting point that you all have to understand. अभी हम फिनीर को पे होल्ड पे डालते हैं, मॉन्ट्र पे होल्ड पे डालते हैं। यहाँ समझ लीजिए, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे पास दो आंसर्स होते हैं, वी और नो। क्लियर है आप सभी को? वी और नो। Tu es professeur? Kanika, tu es professeur? Non, je ne suis pas professeur. Je suis étudiante. Je suis étudiante. ठीक है एकदम। शिवानी, tu es étudiante? Je suis étudiant. Very good. Oui. Je suis étudiante. Okay. Next. Navya, tu n'es pas professeur? Tu n'es pas professeur, Navya? Oui, je ne suis pas professeur. ओके, तो फ्रेंच लोग बोलते हैं नो, je ne suis pas professeur। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको नव्या? जब ना होता है तब हमारी इंडियन लोग क्या होते हैं, हम पहले हाँ बोलते हैं, हाँ मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। फ्रेंच लोग क्या बोलते हैं शिवानी? नहीं, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। ठीक है, क्लियर है आपको कनिका? जब प्रश्न ना है, नेगेटिव है, और उत्तर भी ना है, तो क्या बोलना है? नो, je ne suis pas professeur। तो आपको ये नहीं बोलना नव्या, oui, je ne suis pas professeur, non, je ne suis pas professeur। यहाँ तक क्लियर है? कंट्रोल में? तो एक और ट्राई करते हैं। शिवानी,
tu n'es pas française? Tu n'es pas française? फ्रेंच तो नहीं हो ना? Tu n'es pas française? Je n'ai pas français. Je ne suis pas française. Je ne suis pas français. हाँ ये ठीक है, समझ में आ गया आपको. Je suis indienne. मैं तो भारतीय हूँ. Je suis indienne, right? Okay, toi Kanika. Tu n'es pas docteur, non? Tu n'es pas médecin. Tu n'es pas docteur? Non, je ne suis pas médecin. Voilà, je ne suis pas médecin, je suis étudiante. तो ये आपको क्लियर हो गया सभी को. When the question is positive, the answer can be no, and the answer can be yes. But when the question is negative, Navya, answer can be no. But when the question is negative, Kanika, and the answer is yes, तब क्या बोलते हैं? मैंने कहा, Kanika, tu n'es pas étudiante. इसका मतलब क्या है कनिका इस क्वेश्चन का? क्या पूछा मैं? Tu n'es pas étudiante? You are not a student. हाँ, स्टूडेंट तो नहीं हो ना? पर आप हो या नहीं हो? हो तो क्या जवाब दोगे? नो तो नहीं देंगे. हाँ je suis étudiant तो आपने सही बोला. je suis étudiant बोलना पड़ेगा हमें, लेकिन उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? ना हम नो लगा सकते हैं क्योंकि नो से तो बात ही गलत हो जाएगी, और हाँ हम बोलते नहीं है फ्रेंच में जब नेगेटिव हो क्वेश्चन जब नेगेटिव हो और जब हाँ बोलना हो. सुन लीजिए अच्छे से शिवानी, कनिका, नव्या. क्वेश्चन नेगेटिव है, बोलना हाँ है, तब हम बोलते हैं SIC. ठीक है, सी. तो जब आपसे कोई पूछे, नव्या इंडियन तो नहीं हो ना? सी इंडियन हूं. शिवानी जयपुर में तो नहीं रहते ना? सी j'habite जयपुर. कनिका स्टूडेंट तो नहीं हो? सी je suis étudiante. राइट? तो ध्यान रखिएगा नव्या, जब भी सवाल है नेगेटिव, आपका जवाब हाँ है तो हम बोलते हैं सी. समझ में तो नहीं आया ना किसी को भी? Si, je ब्रावो, सी je comprends. वेरी गुड. सी. सो मैंने पूछा, आपको समझ में तो नहीं आ रहा ना? vous ne comprenez pas. vous ne comprenez pas. तो आपने कहा सी monsieur सी. हम कई बार स्ट्रेस देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, यू नो, सी je comprends. COMPRENDS. je comprends. Ok, ça va? Ok. Shivani, tu n'habites pas à Jaipur? Tu n'habites pas à Jaipur? Si, je suis, oui, j'habite à Jaipur. Voilà, si j'habite à Jaipur. J'habite à Jaipur. Très bien. Kanika, tu ne parles pas hindi? Tu ne parles pas hindi? Si, je parle pas pas क्यों लगाया आपने? je parle hindi. voilà, si je parle हिंदी, बिल्कुल बोलती हूँ मैं हिंदी. तब उसमें न पानी लगा. si je parle हिंदी. नव्या, tu ne regardes pas la télé? Once again? No, je regarde la télé. अब आप टीवी देखते हो तो उसके पहले आप नो बोलोगे या सी बोलोगे? Oh, si. Si je regarde la télé. si je regarde la télé. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हमने ये देख लिया. अब हम फटाफट से एक बार आपको ये मैं बता रहा था IR एंडिंग वर्ब्स का जो कॉन्जुगेशन होता है, बहुत सिंपल है. आई एम श्योर आपको याद होगा. फटाफट से देख लेते हैं एक बार. इट गोज लाइक दिस. je finis FINIS. tu finis FINIS. il, elle, on finit FINIT. nous finissons FINISSONS. vous finissez FINISSEZ. और il, elle फिनिश में क्या हो जाएगा? FINISSENT. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें एंडिंग्स किस प्रकार से चलेंगी. नव्या, you'll have to put SST, SSONS, SSEZ and SSENT. तो याद रखना पड़ेगा आपको थोड़ा. राइट कनिका, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी. और आखिरी में मैं आपको एक और वर्ब दे रहा हूँ, vendre, to sell. इसका होता है je vends, VENDS. tu vends, VENDS. il,
एल वों VEND, नू के साथ होता है वोंदों VENDONS, वो के साथ वोंदे VENDEZ, और अंत में एल वोंद VENDENT राइट। तो इस तरीके से इसका कॉन्जुगेशन चलेगा, ध्यान रखना है आपको। सब I'll send you the PDF. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज पासे कंपोजे। पासे कंपोजे क्या होता है, उससे भी पहले एक लास्ट टेंस में आपको सिखाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक और टेंस याद होगा, नव्या, कनिका, शिवानी, लो पासे récent, याद है कनिका? पासे récent, व्हाट इज दैट? रिसेंट पास, जो ताजा, हाँ जस्ट, वेरी गुड, जो ताजा ताजा करके आए हो भी आप। बस मैं खाना खा के आई हूँ, मैं चाय पी के आई हूँ, मैं टीवी देख के आया हूँ। तो हम इसमें क्या करते हैं, वनीर वर्ब होता है हमारे पास, टू कम, इसको काम में लेते हैं नव्या, je viens VIENS, tu viens VIENS, elle on vient VIENT, nous venons VENONS, vous venez VENEZ, और elle VN VIENNENT। यहाँ तक याद है आपको अच्छे से? शिवानी, वनीर वर्ब है जो इसका मतलब होता है आना, टू कम। इसके साथ हम DE द लगाते हैं सभी के अंदर, द, और जो भी मेरा काम मैं करके आया हूँ कनिका, उसको पूरा को रख देता हूँ। मैं बस अभी खा के ही आया हूँ, कैसे बोलेंगे शिवानी? आई हैव जस्ट ईटन। शिवानी, अभी अभी खाया मैंने। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। manger, manger, पूरी क्रिया है। je viens de manger, किसने कहा खाना खाओगे? नो नो, je viens de manger, बस खा के आई हूँ, खा के, राइट? ओके, उसने बस अभी अभी तुमने अभी अभी देखा है, यू हैव जस्ट सीन, कनिका, यू हैव जस्ट सीन। tu viens de regarder, पूरा सुनाई देना चाहिए। नेक्स्ट वन नव्या, she has just sung, she has just sung, उसने अभी भी गाया है। Elle vient de chanter. वेरी गुड, elle vient de chanter, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप कोई भी वर्ब को काम में लेके आप पासे रेफरेंस बना सकते हो। सवा, सबसे अच्छी बात इसकी होती है नेगेटिव होता ही नहीं है, इसका नेगेटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो चीज ताजा ताजा भी करी नहीं है उसका नेगेटिव थोड़ी कब बोलोगे। नहीं नहीं, मैं अभी अभी खाना खा के नहीं आया हूँ, ऐसा हिंदी में शायद फिर भी बोल लो आप, लेकिन फ्रेंच में नहीं बोलते। जब चीज हुई नहीं है तो वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? गॉट इट? सो पासे रेसो इज नेवर फाउंड इन नेगेटिव। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पासे कंपोजे पे। आज आराम से समझिएगा इसको, एक टॉपिक में बताता हूँ आपको पासे कंपोजे का। पासे कंपोजे का मतलब क्या होता है? वो चीज जो हो चुकी है, कनिका, शिवानी, नव्या, आई हैव ईटन, शी हैज अंडरस्टूड, वी हैव स्पोकन, उसने समझ लिया, उसने बोल लिया, हमने देख लिया, उन्होंने खा लिया, इस तरीके का। अभी तक हमने A1 में सीखा नहीं था, याद है आपको? अब हम देख रहे हैं इसको शिवानी से, वो एक्शन हो चुका है। तो देखिए इसमें हमें किस वर्ब की आवश्यकता पड़ती है? अवर। इंग्लिश में मैंने क्या बोला था? आई हैव स्पोकन, शी हैज ईटन, they have let's say spoken, they have I'll take spoken, eaten, given, they have given, उन्होंने दे दिया है, ठीक है, उन्होंने दे दिया है। इसको हिंदी में बोलना आता है आई हैव स्पोकन, मैंने बोल लिया है, ठीक है शिवानी, मैंने बोल लिया, आई हैव स्पोकन। शी हैज ईटन, उसने खा लिया है, राइट नव्या? दे हैव गिवन, उन्होंने दे दिया है, कनिका, काम खत्म, ठीक है शिवानी, क्लियर है अंग्रेजी में? अब फ्रेंच में कैसे बनेगा कनिका? कौन सा वर्ब है ये वाला, बताओ कनिका? या कनिका, which verb is that? avoir, to have, avoir, right?
अब इसका कॉन्जुगेशन कैसे चलता है, कोई बता सकता है? किसी को याद है ओवर का कॉन्जुगेशन शुरुआती क्लास में था? चलिए शिवानी को बताने देते हैं। चलिए शिवानी आप बताइए। जे क्यू आ इना एना ओना नु नु इल्जो एल परफेक्ट। याद क्लियर है नव्या, कनिका, शिवानी? ठीक है, ये तो हमें याद है, लेकिन अब हम वो वाला टेंस नहीं बना रहे। कनिका, मेरे पास एक पेन है, जे स्टीलो, ये नहीं कह रहा मैं वाक्य, मेरा वाक्य ये नहीं है कनिका, शिवानी, नव्या कि आई हैव अ पेन, ये तो प्रेजेंट टेंस है। अब तो मैं आई हैव के बाद क्या लेके आ रहा हूं? एक नया वर्ब लेके आ रहा हूं, एक नई क्रिया लेके आ रहा हूं। उस क्रिया का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। इंग्लिश में आपने सीखा होगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सिंग, sang, sung, drink, drank, drunk, eat, ate, eaten। तो थोड़ा सा अंग्रेजी को याद कीजिएगा। जो थर्ड फॉर्म होते थे नव्या, ईटन, गिवन, संग, रिटन, ये जो सारे फॉर्म्स हैं कनिका, शिवानी, ये थर्ड फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, फ्रेंच में ये बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अंग्रेजी से तो बहुत ही आसान है। कैसे? पहले ये बात समझ में आती है आपको? हमको ये थोड़ी बोलना है, ये नहीं बोल रहा मैं, मेरे पास एक पेन है, ये वाक्य नहीं है मेरा, हटा दो इसको। तो हटाने के लिए इसको ऐसे मिटा के हटा देते हैं। चलिए मिटा के हटा दिया इसको, परफेक्ट। अब देखिए मुझे क्या बोलना था। अच्छा, स्पीक की वर्ब क्या होती है फ्रेंच में? एनीवन बताइए, स्पीक की वर्ब क्या होती है? टू स्पीक, वापस पूरा बोलिए। पार्ले, वेरी गुड। टू ईट की वर्ब बताइए, अनम्यूट एनीवन, एवरीवन। मॉन्जे, वेरी गुड, MANGER। और आखिरी में टू गिव की वर्ब बताइए, दोने। दोने याद है शिवानी, नव्या? दोने। अब बहुत आसान काम है। जो जो ER एंडिंग वर्ब्स होते हैं ना शिवानी, ER एंडिंग, उनकी थर्ड फॉर्म कैसे बनती है? तीसरी फॉर्म। तीसरे फॉर्म का नाम होता है पार्टिसिप पासे। जो थर्ड फॉर्म होता है ना, उसका पहले नाम समझ लेते हैं। फ्रेंच में होता है, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पार्टिसिप पासे, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये बोलते हैं, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, सो ये अब कैसे बनता है? इसमें हमें क्या करना है? हमें ER एंडिंग वर्ब में बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। आपको R को हटाना है, और ये जो उसके पहले E लेटर दिख रहा है आपको शिवानी, E, उसके ऊपर एक मात्रा लगानी है, ये वाली। तो मैं क्या इस प्रकार से इसको मिटा देता हूं, फिर आप मुझे बताना कि हाँ सर ये सही है। ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया। क्या ये समझ में आता है आपको? ठीक है। अब तो थर्ड फॉर्म कैसे बनता है कनिका? ER एंडिंग, याद रखिएगा। IR की बात नहीं कर रहा, RE की बात नहीं कर रहा, ER की बात कर रहा हूं। उसमें क्या करना है? और R को ड्रॉप करना है, और जो E बच जाता है शिवानी, इस पे एक्सों लगाना है। कौन सा एक्सों? एक्सों एग्यू, एक्सों एग्यू। ठीक है, नाम याद है। इसका साउंड पता है एक्सों एग्यू के साथ क्या बन जाएगा? एनीवन? हाँ, क्या साउंड हो जाएगा? इसको कैसे पढ़ेंगे? वेरी गुड, पार्ले ही रहा साउंड, क्योंकि एक ही मात्रा थी, याद है आपको? पार्ले। ये क्या हो जाएगा नव्या? मॉन्जे। और ये क्या हो जाएगा कनिका, शिवानी, नव्या? दोने। वही ध्वनि है, साउंड वही है, सेम साउंड, लेकिन वो मेरी क्रिया थी, वो मेरी क्रिया थी, वर्ब था। और ये क्या है? ये है मेरा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? पार्टिसिप पासे। दिखा आपको शिवानी, कनिका, नव्या? क्या बोलते हैं? पार्टिसिप पासे। नाम पता होना चाहिए, थर्ड फॉर्म। यहां तक ठीक है? कंट्रोल में मामला शिवानी? ओके,
तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ये क्या है? इंग्लिश का क्या है ये? ईटन है। आई एम सॉरी, दैट्स नॉट दिस वन, आई मेड अ लिटिल मिस्टेक। दिस इज स्पोकन, आई एम सॉरी, ये स्पोकन है ना, पार्ले था, आई एम सॉरी। अब मॉन्जे हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कहने का? ईटन, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएगा नव्या? गिवन। यहां तक आप समझते हैं? सबको ओके है? अब अगर मुझे ये बोलना है, यहां पे आ जाओ फटाफट से, आई हैव ईटन। कौन ट्राई कर सकता है? आई हैव और ईटन कैसे बोलेंगे? वेरी गुड, जे मॉन्जे, परफेक्ट। क्या मतलब होता है इसका शिवानी? जे मॉन्जे, आई हैव ईटन, मैंने खा लिया, मैंने खाया। ठीक है नव्या, मैं खा रहा हूं नहीं, मैं खाने वाला हूं नहीं, मैंने अभी अभी खाया है नहीं, मैंने खा लिया। आप ईटन, किसने पूछा खाना खाया? oui j'ai mangé, खा लिया। ठीक है कनिका, j'ai mangé। तुमने खाया? आपको अपने फ्रेंड को पूछना नव्या, तुमने खाया? तूने खाया? क्या पूछोगे आप? वेरी गुड, tu as mangé, परफेक्ट। ओके कनिका, या कनिका आप बताइए। ही हैज स्पोकन, उसने बोल लिया है, उसने बोल लिया है। इला पार्ले, इला पार्ले, ठीक है इस तरीके से। नेक्स्ट नव्या आप बताओ, बताइए। शी हैज गिवन, वो दे चुकी है भाई, उसने अपना पेपर दे दिया है, आप क्यों उसको बार बार मांग रहे हो? शी हैज गिवन, एला दो, एला दो ने, ठीक है एला दो ने। ओके एक दो और ट्राई करते हैं फटाफट से, अब आपका दिमाग लगाइएगा। आप ट्राई कीजिए शिवानी। हमने देख लिया, वी हैव वॉच्ड, वी हैव वॉच्ड। टू वॉच की वर्ब क्या होती है शिवानी? वापस बोलिए। regarder, तो क्या बोलोगे आप? वी हैव वॉच्ड, वेरी गुड। और regarder की ऐसी हो जाएगी शक्ल, मतलब ई पे एक्सेंट, ठीक है। क्या मतलब है? हमने देख लिया, वी हैव वॉच्ड। बहुत आसान है, पास से कंपोज है, प्रेजेंट टेंस से तो बहुत आसान है, खटाखट बनेगा आपसे, देखिएगा। ओके आपको बड़े व्यक्ति से पूछना था कनिका, आपने खाया? सर आपने खा लिया? वेरी गुड, vous avez mangé, क्वेश्चन मार्क। अच्छा नव्या, दे हैव, दे हैव, दे हैव संग, उन्होंने गाया है, दे हैव संग। ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté, ठीक है। और एक आखिरी में सुन लेते हैं शिवानी से, दे हैव डांस्ड, उन्होंने डांस किया, दे हैव डांस्ड। elles ont dansé, बताइए, हो गया ना काम? क्लियर है? उन्होंने डांस किया। तो इस प्रकार से क्या बनता है हमारा पास्ट टेंस। लेकिन ये आधा ही पास्ट टेंस है, अभी तो मंजिल दूर है, लेकिन एक प्रकार का पास्ट टेंस है, बड़ा सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब नाम इसका है पास्ट कंपोज, अववार की मदद से बनता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको कैसे करना है। इसके अंदर हमें अववार की वर्ब काम में लेनी है और साथ में थर्ड फॉर्म लगाना है। इसका नेगेटिव देख लेते हैं फटाफट से। ये मॉन्जे का नेगेटिव बताइए, हु कैन ट्राई, अनम्यूट करके बताइए। मैंने नहीं खाया, नव्या। अच्छे से बोलिए शिवानी। वाला, je n'ai pas mangé, ठीक है। je n'ai pas mangé, I don't know which color to pick, I'll take yellow one ले लेता हूँ। चलिए, je n'ai pas mangé याद आया आपको? je n'ai pas mangé, शिवानी समझ में आ रहा है? इसी का तो करेंगे ना, नेगेटिव रटाया था आपको फर्स्ट A1 में, je n'ai pas, tu as, tu n'as pas, il a, il n'a pas, भूल गए उस गाने को? आज काम आया वो गाना, याद है ना? वो इसी दिन के लिए सिखाया था मैंने आपको, जे का je n'ai pas mangé। कनिका नेक्स्ट बताइए, तुमने नहीं खाया? तूने नहीं खाया? हाँ, tu n'es pas क्यों बोला आपने पूरा मुंह खोल के? tu n'as pas mangé, ठीक है वेरी गुड। छोटा छोटा लिख रहा हूँ, इसका पीडीएफ जब भेजूंगा उसमें जूम करके देख लेना, राइट, और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अच्छा, उसने नहीं बोला,
शिवानी, उसने नहीं बोला। Il n'a pas parlé. वेरी गुड, il n'a pas parlé, उसने नहीं बोला। अच्छा, उस she did not give, कनिका she did not give, उसने नहीं दिया। Il n'a pas donné. elle n'a pas donné, ठीक है। ओना के साथ मैंने छोड़ दिया तो मैं कुछ भी डाल दूं, ओना ओना एट्यूडिए, एट्यूडिए याद है पढ़ाई करना, एट्यूडिए, वो भी ई आर एंडिंग होता है नव्या, आर ड्रॉप करके ई पे लगा दिया है ना, हमने पढ़ाई करी, हमने पढ़ाई नहीं करी, बहुत अच्छी बात है, ओना पे एट्यूडिए, पढ़ाई तो करनी चाहिए ना, तो ओना पे एट्यूडिए नहीं बोलना, ओना एट्यूडिए। पूछूंगा कल मैं आपसे पास्ट टेंस क्या क्या किया, खाना खाया, टीवी देखा, 10-10 सेंटेंस बनाने, होमवर्क पहले बता रहा हूँ आपको, फिर आप कहना सर आपने तो होमवर्क ही नहीं दिया, तो इसलिए भूलना नहीं है। और आप ये तो कभी मत भूलना कि मैं भूल गई, कैसे बोलते हैं मैं भूल गई, j'ai oublié, ऐसे बोलेंगे शिवानी, j'ai oublié, मैं भूल गई, I have forgotten, तो ये नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं है, je n'ai pas oublié, ये होना चाहिए मैं नहीं भूली। उबली वर्ब याद है आपको शिवानी, कनिका याद आ रहा है, उबली होता है भूल जाना, उसका थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, कनिका आर को ड्रॉप किया, ई पे एक्सेंट लगाया। चलिए फटाफट से इसका नेगेटिव देख लेते हैं। हमने नहीं देखा, नू नावों पा, यहाँ पे छोटा सा पा इंसर्ट कर रहा हूं मैं, आप इसको जूम करके देख लेना, vous n'avez pas mangé, ils n'ont pas chanté, elles n'ont pas dansé, ठीक है। नपा नपा मैंने फिट किया है, जहां जहां वॉवल था शिवानी एन अपॉस्ट्रोफ कर दिया, जहां पे वॉवल सब जगह ही था तो एन अपॉस्ट्रोफ किया, ठीक है। सबा, तो ये हो गया पासे कंपोजे। कल आप सभी को 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने खाना खाया, j'ai mangé la nourriture, खाना ढूंढेंगे वर्ड रेफरेंस डिक्शनरी पे जाके, सिर्फ ऐसे वाक्य नहीं सुनने मेरे को नव्या, j'ai mangé, j'ai chanté, j'ai parlé, j'ai travaillé, नो, वैरायटी, j'ai mangé une pizza, elle a regardé la télé, nous avons joué au sport, वैरायटी के साथ बनाइएगा। और उन्हीं सबको नेगेटिव भी बनाना है आपको शिवानी, मैंने पिज्जा खाया, j'ai mangé une pizza, मैंने पिज्जा नहीं खाया, je n'ai pas mangé de pizza, आपको याद होगा A1 के अंदर हमने सीखा था une de, पॉजिटिव से जब नेगेटिव जाते हैं तो DE बन जाते हैं, याद है, je n'ai pas mangé de pizza, तो ये मेरे को वाक्य बना के लाइएगा कल की क्लास के लिए। Ça va, vous avez des questions, questions, vous avez des questions? Oui, Navya. When do we have classes? Like, is it like Monday to Friday? Oh, I think I sent some message to your mom. I'll just confirm it. I think there was a little confusion, or I don't know. What did I say? I mixed it up. Just a second. Yeah, classes are for, that's what we have, right? Monday to Friday, isn't it, Shivani, Kanika? Monday to Friday हमारी classes है ना, मैं miss कर गया था इसलिए बताना आपको। हाँ, Monday to Friday है. It's for it's from 4:10 till 5 बजे तक, और या 5 तक, right? सवा इंटेंसिवली आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। अब A2 पे जब हम पहुंच जाते हैं ना शिवानी, कनिका, नव्या, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। हमने चाहे कितनी पहले पढ़ाई कर रखी हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी हैव टू ऑलवेज वर्क ऑन इट, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना। यू शुड बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस। कल आते ही पूछूंगा मैं आपसे, व्हाट डिड यू डू monsieur, j'ai regardé la télé, j'ai parlé au téléphone, j'ai mangé une pizza, j'ai travaillé, j'ai étudié, राइट? सिर्फ जे में बातें नहीं करनी, फिर मैंने मेरी फ्रेंड ने ये किया, मेरे सिस्टर ने ये किया, इस प्रकार से भी सेंटेंस बनाने, ठीक है? ओके, और एक लास्ट में आपको शीट दिखा रहा हूं ताकि आप बोर ना हो, कल आपके लिए होमवर्क है इसका, आपको मैं, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और या 10 तक ही कर लेते हैं, नहीं 20 करेंगे। एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ये आपको करना है पासे कंपोजे को काम में लेते हुए। सबा, कनिका, शिवानी, नव्या, और 10 के बाद एक और है 11 से लेके 20 तक, इसका भी ले लीजिए। इतना काम है आपका, तो आपको करना क्या है, आपको जो ब्रैकेट में वर्ब्स दिए ना शिवानी, कनिका, नव्या, इनका थर्ड फॉर्म ढूंढना है। अगर ये ER एंडिंग है तब तो याद है आपको R को हटा के एक्सेंट लगाना है, लेकिन अगर ये थोड़े से खतरनाक वाले वर्ब्स हैं तो इनका इंटरनेट पे जाना, ढूंढना कि एकरीर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, दीर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ढूंढ ढूंढ के लाना, और फिर इस वाक्य को पूरा करना अववार के साथ और थर्ड फॉर्म के साथ। सबा,
शिवानी, कनिका, राइट? और इसका मीनिंग भी बताइएगा। जैसे पहला वाक्य देख लेते हैं आपको सहायता करने के लिए। ओके, आई एट अ croissant ce matin. बहुत ज्यादा ही इसका थिकनेस है तो मैं इसको कम करता हूं। ऑलराइट, सो इट्स गोना बी j'ai mangé un croissant ce matin. I ate a croissant. croissant याद है, वो फ्रेंच ब्रेड होती है ऐसे तिरछे से। इसको देखिएगा इंटरनेट पे croissant को भी। ce matin, this morning, मैंने आज सुबह एक croissant खाई। j'ai mangé, ठीक है? तो इस प्रकार से past tense आपको सारे बनाने हैं। Voilà, c'est tout. So tomorrow we'll catch up again at the same time. Wishing you all the very best. Do well and flourish like a great flower, a great star in French life of yours at A2 level. And then see you tomorrow at the same time. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Au revoir.